The third and final phase of the assembly polls in Jammu and Kashmir is on the anvil. In this phase, 415 candidates are in the fray for 40 seats. Their fate shall be decided by 39 lakh electorate voters spread across 7 districts in the Union Territory. For a smooth polling process, the Election Commission has set up 5,060 polling stations, which will be manned by a total of 20,000 polling staff. In the Jammu region, 24 seats will witness a close contest between the Bharatiya Janata Party and the Congress. Meanwhile, in North Kashmir, 16 seats will see a tough competition between the India Bloc candidates from the National Conference and the Congress, and representatives from the Jammu Kashmir People's Democratic Party, as well as several independents. But who really will clinch the J&K mandate? What is the pulse of the people on the ground? Before the voting officially begins, we hop across to my colleagues joining us on the broadcast. I have with me Ajay Jandal from Jammu and Arzu Seth from Udhampur Gold Market. Ajay, I'm going to come first to you. If you can, for the next 15 minutes, take our viewers through what really is the pulse of the voter on the ground. Ajay, over to you. Thank you, Devika, and definitely it is the time when people have to introspect and think that what they have to do in next few hours, because they know that from tomorrow morning at 7 they will come to the polling station, and right behind me there is a polling station where we will see that long queues of the people, those who are waiting for last one decade, 10 years to cast their vote for the Jammu and Kashmir Assembly election, and they know that they have to elect a person who will change their area, develop their area, who will provide them best ever possibility. They required basic amenities and roads, water supply, electricity and other issues, because during the parliament election people were basically thinking of making a union government, but when it comes to the assembly election, people always think about the localized candidate. They always need a person whom they can contact on the daily basis, and definitely the time has come in the Jammu and Kashmir when in Jammu regions, Jammu, Samba, Kathua, Udhampur will go for the polling and definitely decide the fate of more than 200 candidates, those who are in the fray, and same in there in the Kashmir Valley, because Kupwara, Baramulla and Handwara, they will go for the poll, and 40 seats. And for the political parties, those who are in the fray, they know that they have to want maximum number of seats if they want to form a government in the Jammu and Kashmir. As far as the BJP is concerned, BJP won most of the seat in the Jammu region out of these 24 seats which will go for the poll tomorrow. And in Kashmir, North Kashmir was basically led by the PDPs. Most of the candidate of the PDP, they won from the North Kashmir. But what is going to happen tomorrow, where people are going to vote, and we have with the a number of voters, those who are here with us in Jammu city, and this is the Bahu constituency of Jammu city, where there is we are expecting that there will be a tough competition between the candidate of the Alliance Party, National Conference and the Congress, and the BJP. Who is going to win, that has to be decided by the voters. Will request the voters not to name any party and not to name any candidate, but yes, they must share that what they are thinking, how they are going to vote. आपसे जानना चाहूँगा, पार्टी का नाम और कैंडिडेट का नाम आप नहीं लेंगे, ये हम आपसे पहले ही रिक्वेस्ट करें, मगर क्या लगता है जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं 10 सालों के बाद, लोगों के मन में क्या चल रहा था, किस तरह का नुमाइंदा उनको चाहिए था, क्या वो सोचते हैं, आपको क्या लगता है? लोग यही सोचते हैं कि 10 साल से इलेक्शन नहीं हुई है, तो अब जो कैंडिडेट आए वो हमारे जो मसाइल से नहीं हो सके, जो काम नहीं हो सके, वो काम हमारे सारे हों, तो इसलिए ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं उसी कैंडिडेट को जो पहले भी यहाँ काम करते हैं और अब भी सबकी जान पहचान है उनसे, तो उसी क्या लगता है जो लोग 10 सालों में नहीं हो पाया, वो क्या चीज़ें थी? जब विधायक नहीं होता है तो क्या दिक्कतें होती? हम किसी के पास डायरेक्ट जा नहीं सकते, ऑफिसर होते हैं वो बात मानते नहीं है, तो ये हमारे अपने कैंडिडेट होते हैं, तो इनको हम जाके कोई भी काम करवा सकते हैं, बात इनको बोल सकते हैं हम। क्या लगता है आप कैसा नुमाइंदा आप चुनने वाले हैं? 10 सालों से ठीक है आपके पास नुमाइंदा नहीं था, एलजी प्रशासन था, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की होंगी, आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे जब एक वोट डालने जाएंगे, दिमाग में क्या चल रहा है? अब यही है कि जो भी नुमाइंदा है वो ठीक ही मतलब होगा और ठीक ही काम करेंगे, क्योंकि पहले तो गवर्नर राज था, तो ठीक है जैसे बोला इन्होंने सरजीत जी ने कि काम नहीं चलता है, अब ये है कि जो भी एमएलए होगा हमारा, हम जाके काम करवा सकते हैं।
तो एमएलए कैसा होना चाहिए, क्या उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए? क्वालिटी देखो, पब्लिक समझदार है। अब पब्लिक समझदार है, ऐसी बात नहीं है। वो जो भी चुनेंगी पब्लिक वो देख सुन के ही चुनेगी। आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सबसे पहले दिमाग में रहेगा कि कैसा नुमाइंदा चुनना है, क्या वो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए जो वो करे? सबसे पहले है कि हम ये देखते हैं कि हमारा कैंडिडेट कैसा हो, जो काम करने वाला, अप्रोचेबल होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, जिसका एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि वो हमारी लोकल डेवलपमेंट, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट है, वो करवा सके। और उसके अलावा और भी हमारे काफ़ी मैटर्स होते हैं, जैसे किसी को कोई ट्रांसफ़र हो जाती है, किसी की अपॉइंटमेंट आ जाती है, किसी की और आ जाती है, तो उनके थ्रू हम गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था? पहले काम सुस्त था, होता था लेकिन सुस्त था। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, मन में क्या लग रहा है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है? आप जब वोट डालने जाएंगे तो सबसे पहले मन में क्या आएगा? अजय जी, दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को कहा गया है, और ऐसा कौन सा कंट्री है जिसकी 10 साल बाद जो है वो इलेक्शन होती है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है भारत सरकार की, मौजूदा सरकार से, कि 10 सालों बाद आप यहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल करने जा रहे हैं। लोगों में ये है कि जज्बात तो होंगे, और वो भी जज्बात होंगे जो आज का जो सिनेरियो बना हुआ है 10 सालों से, जो लोगों के नहीं काम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है लोग बहुत सूझबूझ के साथ अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए आने वाले दिन जो अभी चुनाव होने वाले उसमें इस्तेमाल करेंगे अपने वोट का, और सरकार को सबक सिखाएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को 10 साल लोकतंत्र से वंचित क्यों रखा। सबसे बड़ा सवाल यह है। और दूसरा सिनेरियो यह है कि 419 कैंडिडेट इस इलेक्शन में लड़ रहे हैं। 419 में से 60% जो है वो क्रिमिनल सीरियस चार्ज हैं उनके ऊपर, और उसके बाद करोड़पति जो है वो 60% करोड़पति हैं। तो आम आदमी की पार्टिसिपेशन तो है नहीं कहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोफाइल। मगर एक चीज और भी सच्चाई है कि 40% कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं। देखिए वो नेचुरली है ना, जो अगर पैसे के हिसाब से जाएंगे तो इंडिपेंडेंट के पास तो पैसा होगा नहीं, तो वो उसके पास ना पैसा है ना कुछ है, वो तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है और थ्रू फुट कर रहा है। तो सवाल ये है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन्होंने अब एक और मुद्दा बताऊंगा आपको जो यहाँ पे ज़्यादा आज स्ट्राइक कर रहा है, वो ये है कि स्थानीय और बाहरी का। जितनी भी पार्टियां देखिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसने वहाँ के लोकल कैंडिडेट को मैंडेट नहीं दिया है और बाहर से पैराशूट से उतारा है। तो ये बड़ा कारण है कि लोगों में ये बहुत जबरदस्त, लिए शायद इंडिपेंडेंट ज्यादा आए हैं। क्या लग रहा है दिमाग में जब वोट डालने जाएंगे कल, तो क्या सोच कर जाएंगे? देखिए, इस बार का वोट बेरोजगारी को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और माइनिंग माफिया बढ़ाने वालों के खिलाफ है, और सबसे बड़ा आज जो बिजली का खेल हो रहा है, जो लोग आम लोगों की जेब पे जो असर पड़ा है इस बिजली के स्मार्ट मीटर से, उसके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात, जो हम एक स्मार्ट सिटी के नाम पे हमारे लोगों को ठगा गया कि आपको स्मार्ट सिटी में, तस्वीर तो बदली है जब सिर्फ 1 किलोमीटर में आप देखिए, 1 किलोमीटर में सारा सिमट के रह जाता है स्मार्ट सिटी। बारिश जब आती है तो स्मार्ट सिटी वही जलमग्न हो जाती है। कहाँ स्मार्ट सिटी? ये सारा इस बार जो यूथ जान चुका है कि झूठे जुमले, झूठे वादों से सरकार नहीं चली जाती, सरकार नहीं चलेगी। वापस लौटूंगा, क्या कहेंगे जिस तरीके से हालात जम्मू कश्मीर के बदले हैं, क्या जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बदला है, वो बदलाव जो है वो लोगों को कन्विंस करेगा कि इस बदलाव की ओर वोट डालें? बीजेपी वोट में नाम नहीं मांगू, मैं पूछूंगा आपसे, मगर क्या लगता है चीजें बदली हैं क्या? जी नहीं, कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा है। वैसे ठीक है, अपना अपना विचार है सबका, बोलना चाहिए। तो वोट क्या सोचकर डालेंगे? वोट जो ही है, जो बेरोजगारी है उसका तो है इशू, तो उसका है ही है ना, बेरोजगारी का, उसका असर होगा। कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच? वोट यही इसीलिए डालने जाना है कि आज हमारे जम्मू में इतनी डेवलपमेंट हुई है, आज नौजवानों को इतना रक्षा मिला है, रोजगार मिला है, वो मोदी जी ने दिया है। आज अखनूर अपने नहर पे चलो, 5 मिनट में आप अखनूर पहुंचोगे। अपने लखनपुर से चलो, इतना डेवलपमेंट पुलों की हो रही है, जी मोदी के टाइम पे। नाम के बिना आप बताइए। अच्छा, मैं वैसे वो आप तो सभी को पता किसने डेवलपमेंट की है।
हमारे जम्मू में पहली दफ़ा इतना पैसा जो लगा पहली दफ़ा लगा है, हमने नहीं देखा कभी इतना पैसा। बस यही कहना हमने। तो वोट लगता है कि बदलाव के लिए नहीं, वोट तो हमने इसीलिए देना है कि जम्मू में जितनी डेवलपमेंट हुई है उसके हिसाब से वोट देना है। 370 मुद्दा 370 मुद्दा वो हम नहीं है, लेकिन हमने देखना है कि हमारे जम्मू में डेवलपमेंट इतनी जो हुई है इतनी कभी नहीं हुई है। इतना जितना पैसा इस दफ़ा लगा है ना, कभी इतनी देर में पहले कभी लगा ही नहीं। इतना पैसा कभी खर्च नहीं हुआ। क्या लग रहा है, ये जो तरक्की है, ये तरक्की बदलेगी जम्मू कश्मीर की तस्वीर, ये लगातार आगे बढ़ेगा? देखिए अजय जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ पहले कि जैसे आपने बोला कि किसी पार्टी का नाम नहीं लेना है, मैं इसी रायपुर सतवारी का बाशिंदा हूँ। यहाँ पे जो पिछली इस 2014 से पहले की जो सरकार है, मैं खनूर की बात करूँ, मैं शंभ की बात करूँ, मैं कठुआ की बात करूँ, यहाँ पे पहले मेरा रेजिडेंशियल है, यहाँ से मैं रोज़ गुजरता हूँ, पहले मेरा वो मुद्दा है। दिल्ली पर गिनाऊँगा, यूपी गिनाऊँगा, वो वहाँ पे मैंने रोज़ नहीं जाना। मुझे जो बेसिक चीज़ें जो जहाँ पे चाहिए, भाई साहब कह रहे हैं कि वो ई रिक्शा मिल गए। आज मैं आपको 1 किलोमीटर के अंदर लेके चलता हूँ। मोदी जी ने जो तोहफा दिया था ई रिक्शा का, उन्होंने बोला था कि इससे पोल्यूशन कम होगा। ये आज आपको 10 से 25 वहाँ पे खड़े होके मिलेंगे वो रिक्शा, जो 2.5 लाख रुपए के भी हैं। तो लोगों के साथ जुमला हुआ, गोबर से गैस बनेगी। आपको लग रहा है कि ये बदलाव इस चीज से लोग नाराज हैं? जी, रोजगार नहीं है। मुझे ये बताओ, ये स्मार्ट मीटर दिया है, जिस बंदे की 8-9 हज़ार रुपये पे होगी वो क्या करेगा? 2400 इसको बिल देगा, बच्चे कहाँ से पढ़ाएगा, खाना कहाँ से खाएगा? चोर नहीं बनेगा, वो चोर बनेगा ना। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। क्या लग रहा है, जम्मू कश्मीर में 370 टूटी, उसके बाद जो बदलाव हुए हैं, बाकी में बदला है? टेररिज्म कम हुआ है, आतंकवाद कम हुआ, उसके बाद सेपरेटिज्म, अलगाववाद कम हुआ है, वो असर इस चुनावों में मुद्दा रहेगा? जी, पॉलिटिकल पार्टियों को अगर आप हाउस अरेस्ट में रखोगे तो आपको लगेगा कि अलगाववाद कम हो गया। बाकी सीरियसली उनकी डिमांड सुनी जाए तो वो आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगी। पॉलिटिकल पार्टियां तो चुनाव में सब प्रचार कर रहे हैं। जी, अब कर रहे हैं, पर जब ये 2019 में जब 370 को एब्रोगेट किया गया था, उस दौरान सबको हाउस अरेस्ट में डाला। अब की बात करें तो अब क्या मुद्दा क्या है? जब चुनाव में जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, तो क्या सोच कर जाएंगे? लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे कि उन्होंने बात की है कि ई रिक्शा आप चला रहे हैं लोग, आप डिफ़ॉल्ट रेट चेक करें, मेरे ख्याल से 90% डिफ़ॉल्ट रेट है। वो सब्सिडी पे उन्होंने उठाए थे सारे ई रिक्शाज, तो अभी उसका डिफ़ॉल्ट रेट 90% के पार है। जेके बैंक यहाँ पास में ही है, आप मीडिया वाले हैं, आपकी अप्रोच ज़्यादा है, आप पता करें। 90% डिफ़ॉल्ट रेट है, जिसका मतलब ये है कि वो प्लान टोटली फेल हुआ है। ई रिक्शा बिके हैं, उसका सामान बिका है, सब कुछ बिका है, पर रोज़गार नहीं। वो रिक्शे खड़े हैं, जो गरीब आदमी है वो उसके नीचे दबा हुआ है। गरीब आदमी दबा हुआ है। जिस तरीके से लोग नाराज हो रहे हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं इससे, क्या लग रहा है ये नाराज़गी जो है, इस नाराज़गी की वजह से यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, इस पर नुकसान होगा? सर, गरीब जो है, आप देखिए, अगर ई रिक्शा का मसला, जैसे मैं सुन रहा था कि आप देखिए उसको कितने लोगों को रोज़गार मिला है। जो लोग 6-7 हज़ार फैक्ट्री पे लगे हुए थे, यहाँ से दूर जाते थे, सुबह जाते शाम आते थे, तो उनको लगभग किराया भी खर्चना पड़ता था, खाने पीने का होता था, कोई 3-4 हज़ार बचता था। आप देखें ई रिक्शा से एक तो पोल्यूशन कम हुआ है, और दूसरा आप देखें कितने लोगों को रोज़गार मिला है, कितने लोग जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट हुए हैं। आज आप देखें उनकी जो आमदनी है वो 30 से 40 हज़ार महीने की हो गई है। अब रही बात कि उसमें ई रिक्शा का मेंटेनेंस, अब वो चलाने वाले भी होता है ना। अब गाड़ी आप मर्सिडीज़ रख लो और उसको चलाने का ड्राइवर जो अनाड़ी हो, तो मर्सिडीज़ कोई मारुति जैसे बना देगा वो। तो बेहतर ये है कि हम ये देखें, जब वोट डालने जाएंगे, ठीक है, अब क्योंकि ये बहस के मुद्दे खत्म हो गए, जब वोट डालने जाएंगे, क्या लग रहा है लोग क्या सोचकर वोट डालेंगे? सर, सबसे पहले सोचेंगे सिक्योरिटी। आप देखें कि पहले जम्मू कश्मीर में बम धमाकों के अलावा हमें कुछ सुनाई नहीं देता था। हम घर से बाहर निकलते तो ये पता नहीं था कि शाम को वापस आना है कि नहीं आना है। पर आज आप देखें गवर्नमेंट की जो ज़ीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के अगेंस्ट, वो देखें आप कितना बड़ा जो है उसमें बदलाव आया। आज जम्मू कश्मीर में G20, कश्मीर में G20 की मीटिंग होती है, तो ये जिन लोगों को दिखता है वो देखेंगे, जिनको नहीं दिखता वो जानबूझ के आंखें बंद कर लें, तो वो हम कह नहीं सकते। बट आप देखें कि आज भी, अब देखें तो आज इस वक्त भी एनकाउंटर चल रहे हैं। तो ये पहले टेररिज्म क्या पहले नहीं थे? ये पहले भी थे, पर कुछ जो सरकारें थी उनकी पनाह थी इनको, और उस कारण जो था कि ये मस्त रहते थे। और आज की जो सरकार है उसका क्लियर का फंडा है कि हम टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा पहले है, राजनीति बाद में। इसलिए देश सुरक्षा जो है वो सबसे पहले है, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तो हम लोग रहेंगे, रोजगार रहेगा, सब कुछ रहेगा। बिल्कुल। और अलग अलग मुद्दे, अलग अलग लोग, अलग अलग सोच के साथ जो है कल वोट डालने वाले हैं। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, बिकॉज tomorrow is the crucial day when Jammu and Kashmir has to go for the
third phase of the polling, and 24 seats in the Jammu and 16 seats in the Kashmir Valleys, North Kashmir. They will go, for the poll, and definitely adequate security measures are put in place. These were the voices from the Jammu, and we will go across to the other place as well. Devika, back to you. Absolutely, Ajay. Thank you so much for joining us, and thank you for bringing us all those voices which will be exercising their right to vote in the Jammu and Kashmir elections. With that, I go across to my colleague Arzu Seth, who joins us from Kashmir. Arzu, over to you. What is the voters' pulse? Well, Devika, Jammu and Kashmir's Udhampur is all set to cast their vote. And first of all, let me give you the glimpse of the market. This is the gold market, the main shops, main market of Udhampur. And if we talk about the contest, there is going to be a very interesting multi-cornered contest between BJP, Congress and JK and PP. And there are 4 assembly seats in this district, include Udhampur West, Udhampur East, Chenani and Ramnagar. So what are the people issues? What are they thinking, and on what basis are they going to vote this time? After 10 years they are getting the chance to vote. हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ यहाँ की पब्लिक जो है वो इकट्ठा हो गई है. सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है. अजय जी, क्या कुछ मुद्दे हैं? कल वोट करने जा रहे हैं, 10 साल बाद मौका मिल रहा है, क्या कुछ सोच के वोट करेंगे? यहाँ पे बहुत मुद्दे हैं हमारे. बाकी हम जो अच्छा विकास करेगा उसी को वोट देंगे. लग रहा है विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में उधमपुर में? से इधर कोई विकास नहीं हुआ है. 2014 में इन्होंने बोला था हम ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ झूठे वादे करके यहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ आते हैं वोट मांगते हैं, फिर दिखते नहीं है. अच्छा. हाँ जी. इस बार के कैंडिडेट्स को कैसे देख रहे हैं यहाँ के? इस बार हम यहाँ पे कोई पार्टी को नहीं देखे हैं, हम अपना कैंडिडेट देखेंगे. हमारे चुनानी कंस्टिट्यूंसी से मैं बिलोंग करता हूँ. वहाँ पे तो अच्छा कैंडिडेट, दोनों अच्छे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन जो हम वोट पाएंगे तो श्री हर्षदेव सिंह को ही डालेंगे. This time people will see a candidate, they will see a leader, not on the basis of the party they are going to vote. सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है. सर, क्या कुछ मुद्दे हैं? आप पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, क्या विकास हुआ है उधमपुर में? उधमपुर में कोई विकास नहीं हुआ है. अच्छा. कुछ नहीं, सब बेरोजगारी, तो सब अनएम्प्लॉयमेंट है. किसी का पुल भी नहीं, अभी 10 साल हुए तैयार हुआ, तो क्या लोगों को बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी दिक्कतें हैं. हाँ, लेकिन ये तो है 10 साल के बाद हिंदुस्तान के आइन ने तो हमें वोट देने का हक दिया है, लेकिन उसका फ़ायदा हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है. सिर्फ वादे ही करते हैं, सब बाग ही दिखाते हैं, किसी का कोई नहीं है. उम्मीद तो होगी ना किसी लीडर से? उम्मीद होगी, जब आएगा कोई अच्छी हुकूमत आएगी तो उससे उम्मीद रखेंगे. जब इसी तरह वो ही एक ही है बस. वो हम देख रहे हैं काफी रौनक है यहाँ पे बाजारों में. रौनक तो है ही है. अब आ रहे हैं दिन भी आते, लेकिन रौनक तो है. लेकिन दिल लोगों के पूछो ना, उनमें दिल में रौनक. दिल की बात ही जानने आए हैं. सर, क्या कुछ मुद्दे हैं उधमपुर के जिनको ध्यान में रख के वोट करेंगे कल? हमारे मुद्दे ये हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत दिनों से पानी बिजली की भी समस्या रहती है. पानी तो आ ही नहीं रहा है. 70 साल पहले के 65-70 साल पहले यहाँ एक फिल्टर प्लांट था, तो उससे यहाँ इतनी बड़ी हमारे वार्ड है 21 हैं, और भी जनता यहाँ रहती है, तो उनका पानी कैसे पूरा होगा? तो पानी ही नहीं, अगर बोलियाँ नहीं हो तो इन लीडरों को थप्पड़ पड़ना शुरू हो जाएंगे. पूरा बोलियों पे डिपेंड है ये शहर. तो ये पानी का तो बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे. उसके बाद और भी हमारे स्टेडियम की इतनी बुरी हालत है यहाँ पे कि पिछले 5 साल से उसके 4 बार तो काम हो गया, और वह आप जाएँ स्टेडियम में देखें, वहाँ अलग सी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, वो खेलने के बिल्कुल काबिल नहीं है. मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, तो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स खेलते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो और मेरी बेटी पावर योगा की नेशनल प्लेयर है. तो योगा को तो बहुत प्रमोट किया जा रहा है, आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है? बहुत ही अपॉर्चुनिटी है योगा में, लेकिन हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस पे और भी ये काम करेंगी, तो उसे वो करेंगे. A lot of hope people have from the government that they will work. क्या आप यंगस्टर हैं, उधमपुर में रहते हैं, क्या कुछ लगता है यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में क्या पिछले कुछ सालों में काम हुआ है, या फिर और क्या काम करने की ज़रूरत है? जहाँ तक आपने देखा कि कुछ हद तक जो पिछले कुछ साल थे, 10-12 साल में उधमपुर में काफ़ी ना काफ़ी हमने देखा कि एजुकेशन सेंटर में काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट वो हुई है, कुछ हद तक हुई है, ऐसे बोल सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा भी नहीं तो, लेकिन कुछ हद तक हुई है. जैसे हमने देखा कि IIT, IIM
हम और काफ़ी ज़्यादा जैसे डेवलपमेंट रोड्स में हुई, हाईवे से यहाँ तक पहुँचे, हमने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखी, बट जिस लेवल की होनी चाहिए थी वैसी हमारे उधमपुर में नहीं हुई। क्योंकि अगर जम्मू में हो सकती है, हमारे उधमपुर में क्यों नहीं हो सकती? आपने जीएमसी देखा होगा, वहाँ पे आज उसको हमने लोकल लैंग्वेज में बोल दिया है रेफर हॉस्पिटल। वो किस चक्कर में? मतलब हमारे यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं है जो काम कर सकता है, जो मतलब टोटली यहाँ पे जो 24 आवर्स दे सकता है इस हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर नहीं है कोई भी यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए। अगर आपने जीएमसी दिया है, जीएमसी लेवल का ट्रीटमेंट दो ना यहाँ पे, इसको रेफ़र क्यों किया है? ये यहाँ से जो भी पेशेंट यहाँ पे आता है वो सबसे पहले रेफ़र होता है जम्मू में। क्या यहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं है? मतलब इस lack of medical facility in Udhampur. So Devika, we are going to get the pulse from the ground. We will go across more shopkeepers to understand how their business is going on right now in Udhampur. We also have a lady here. We'll go across her to take her reaction. क्या नाम है आपका? यही है, पर्स बेच रहे हैं। नाम क्या है आपका? सहब देवी। सहब देवी जी, काम कैसा चल रहा है आपका? ठीक है जी, ठीक काम चल रहा है। आज सोमवार को अलग बाजार लगती है आप लोगों की? हाँ जी, अलग बाजार लगती है। काम चल रहा है? ठीक चल रहा है। हाँ जी, ठीक चल रहा है। डालेंगी कल? हाँ जी, डालेंगे वोट भी इधर डालेंगे। बच्चे भी इधर पढ़े हैं, सारे लिखे हैं इधर, सबको आधार कार्ड सब कुछ इधर बना हुआ है। साल से रह रही है इधर 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। बदलाव दिखा है 30 सालों में? बदलाव ठीक ही है इधर, ठीक है। हाँ ठीक ही है, बस दुकानों की थोड़ी दिक्कत है, बस लगाने नहीं दे रहे। आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिलेंडर दे रहा है आप लोगों तक पहुंच रही है ये सब सुविधा है? हाँ, सिलेंडर तो मिला था मोदी का, मिला था, दिया था मैं। बता रही है आप? हाँ दिया। People here are telling that they are getting the benefit of the central government policies, but there are a lot of hopes that people still have from the government. And you can see this is a bookshop, the famous bookshop of Udhampur, and we'll also go across this shopkeeper to understand whether he has seen a development in this region or not. Sir, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण गुप्ता है। अरुण जी, कितने साल पुरानी आपकी ये दुकान है? 1968 की। मेरे ग्रैंडफादर करते थे, उसके बाद मेरे फादर ने टेक ओवर की और अब मैंने टेक ओवर किया है। तो मतलब बहुत हमेशा से आप लोग यहीं रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के आप वोट करेंगे? क्या कुछ समस्याएं हैं उधमपुर की? 2014 के बाद ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है इंडिया की, जो मैंने देखा है। हेल्थ सेक्टर से स्टार्ट करूंगा मैं उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉलो करता हूं, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जहां से जीते हैं दूसरी बारी, वो सेकंड टाइम पीएमओ में मंत्री हैं। 3 मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं हमें। जिस देश की हेल्थ अवस्था ठीक होगी वो देश सुधार करेगा। उधमपुर, डोडा और कठुआ में हमें मेडिकल कॉलेजेस मिला है, जो कि 2014 से पहले हमारे यहाँ के बच्चे जिनके पास पैसा नहीं होता था वो बाहर पढ़ने नहीं जा सकते थे। अब यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, वो यहीं पे एडमिशन लेते हैं। और इसके अलावा जो अब सुनने में आ रहा है 1000 सीट और बढ़ा दी गई है उन बच्चों के लिए। इसके अलावा IIT, IIM और 2 एम्स मिले हैं हमारी स्टेट को, जो कि किसी को नहीं मिले। ये मैं वंदे भारत ट्रेन, वो ओवरऑल डेवलपमेंट, हमारे सुपर हाईवे बनने जा रहा है कटरा से लेके अमृतसर वाया दिल्ली, ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है। मैं क्योंकि एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ, बच्चों को पहले बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, पेरेंट्स वीक थे, पोर थे, वो बाहर जाके एडमिशन नहीं करवा सकते थे, कहीं के पास पैसा नहीं होता था, रिमोट एरिया था। अब दूर दराज तक सड़कें पहुंच गई हैं, सड़कों का जाल बच गया। आपने जिक्र किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने यहाँ पर रैली भी की थी, तब उन्होंने कहा था कि उधमपुर जो है वो टॉप डिस्ट्रिक्ट में बन गया। आपको लगता है टॉप डिस्ट्रिक्ट बन गया उधमपुर? मैंने पहले ही आपको बोला, ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट हुई है। जिस देश की 3 चीजें अच्छी होंगी, घर लोगों को अच्छे मिले, हेल्थ कार्ड पहले 5 लाख का था, अब 7 लाख होने जा रहा है। अब लोग बेफिक्र होके हॉस्पिटल में लेटते हैं, इलाज करवाते हैं और वापस आते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट। अरे मैं तो फुली सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू। Thank you so much to give us such perspective to understand that this development has taken place here. आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं और किन चीज़ों को ध्यान में रख के कल आप वोट करेंगे, क्योंकि 10 साल बाद मौका मिल रहा है वोट करने का। सबसे पहले तो 10 साल बाद इलेक्शन हो रही है, तो इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग फॉर द जम्मू एंड कश्मीर की पहले तो 10 साल बाद इलेक्शन हो रही है। और सबसे जो इससे बड़ी चीज़ होगी वो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है उससे निजात मिलेगी, प्रॉपर पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी। और पॉपुलर गवर्नमेंट जब आपके पास होती है तो
आप इजीली अप्रोच कर सकते हो अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को, वो आपकी बात आगे रखेंगे। चेक एंड बैलेंस का प्रॉपर सिस्टम और मैकेनिज़्म बन जाता है। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर जो भी है कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, दे आर देयर ओन बॉस, बट वंस अ पॉपुलर गवर्नमेंट के रहने पर यहाँ पे काम नहीं हुआ है क्या? आई एम नॉट सेइंग कि एलजी के आने पे काम नहीं हुआ है या ऐसा कुछ, आई एम जस्ट सेइंग कि जब आपके पास पॉपुलर गवर्नमेंट आती है तो एक चेक एंड बैलेंस रह जाता है। हाँ, चेक एंड बैलेंस आ जाता है। जब चेक एंड बैलेंस आएगा, जो डेमोक्रेसी है तभी फंक्शन करेगी। खाली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से डेमोक्रेसी काम नहीं करती है। चेक एंड बैलेंस की बात करें तो यहाँ के क्या मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे क्या हैं जिनको किसी फॉर एनी इलेक्शन जो कोई भी लोकल मुद्दा होता है वो आपकी बेसिक एम्यूनिटीज़, बेसिक रिक्वायरमेंट वो तो रहती है। जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिजली, पानी, सड़क, ये तो बेसिक मुद्दे रहते ही हैं। बट व्हाट नेक्स्ट, इसके अलावा क्या चीज़? इसके अलावा आपको एक प्रॉपर हेल्थ केयर चाहिए, आपको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हो। हेल्थ केयर की बात करो तो जो जम्मू कश्मीर, इट्स अ फॉर्चुनेट इनफ कि इट इज़ अ फर्स्ट स्टेट इन होल नेशन जहाँ पे आपका सबका जो इंश्योरेंस है वो फुल 100% कवरेज जम्मू कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे हुआ है। तो अब जैसे कि मैनिफेस्टो में, फॉर टू कोट एन एग्जांपल, जैसे बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें जो ये पूरा है 5 to 7 लाख पे लिया गया, तो इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेप अगर ऐसा होता है तो। और मोर ओवर जो आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक एम्स आ रहा है और जो यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल से कन्वर्टिंग टू जीएमसी, तो definitely about BJP's manifesto, other parties are also saying that they will bring a change in Jammu and Kashmir. They will bring back Article 370. How do you see that? This is just a gimmick. It is not going to happen. It is a central act. How can you restore Article 370? This is a general confusion between the alliance that we have seen today between the NC and the Congress. How can they bring back 370? It is an act passed by the parliament, and I don't think NC and the Congress has a majority that they can bring the 370. It is merely a gimmick, and especially for the NC. And when you go and ask to any spokesperson of the Congress or anyone else, I don't think they give you a comfortable answer or a direct or a straight answer on that particular issue of 370. So you heard a gentleman saying here that there is a, the Congress and other parties are trying to make a confusion among the public, but what they are hopeful that there has been a development in Jammu and Kashmir, and they are hoping a lot from the upcoming government. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.